اور اب آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا کیسز مزید بڑھنے لگے 24 گھنٹے کے دوران 4286 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے مزید آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا سے مزید 4 اموات جاں بحق افراد کی تعداد 29,003 ہو گئی 709 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے مثبت کیسز کی شرح 8.16% رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 13,20,120 سے تجاوز کر گئی کمشنر کراچی کے زیر صدارت شہر میں کرونا کے پھیلاؤ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ اسکول انتظامیہ کو 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے اسکولوں میں ویکسینیشن کا پابند کیا جائے گا جبکہ تعاون نہ کرنے والے اسکولوں کو بند کر دیا جائے گا اجلاس نے شادی ہالز میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا ماسک کے بغیر شادی ہالز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ شادی ہالز میں 1000 سے زائد مہمانوں کے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے سے بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ ہلکی درمیانی بارشوں کا سلسلہ ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں منگل کے روز داخل ہوگا اور جمعرات تک موجود رہے گا منگل اور بدھ کے درمیان کوئٹہ زیارت پشین کلا عبداللہ کوہلو اور بارخان میں بارش برف باری کی توقع ہے اس دوران مری گلیات نتھیا گلی کاغان ناران چترال دیر سوات کوہستان استور ہنزا گلگت وادی نیلم باغ اور حویلی کے اضلاع میں برف باری کی امید ہے جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں درمیانی بارش ہونے کی توقع ہے منی بجٹ کی بات کریں گے منی بجٹ دھماکے کے بعد پیٹرول بم سے وار نئے سال کے پہلے ہی مہینے میں حکومت دوسری بار پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے تیار اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات 4 سے 5 روپے فی لیٹر مہنگی ہونے کا امکان ہے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے سے اضافے کی ورکنگ کی گئی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے وزارت خزانہ کی جانب سے آج نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کر دیا ہے پالیسی اکانومی ملٹری اور ہیومن سیکیورٹی کے 3 بنیادی نکات پر مشتمل ہے وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے قوم کا قبلہ درست کیا گیا بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانے سے سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے معاشی طور پر مضبوط نہ ہونے پر ہم دوسروں سے قرض لیتے ہیں پہلے سیکیورٹی کا مطلب ملٹری سیکیورٹی لیا جاتا تھا مسلح افواج نے مشکل حالات میں پاکستان کا بھرپور دفاع کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی کبھی بھی ایک کوارڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں آیا آئی ایم ایف جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی سیکیور کرنا کیسے گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی یہ جو سٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور معید آپ نے جو محنت کی ساری قوم کا کنسنسس بنا کے قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا تو یہ جو ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے پبلک ہے وہ سب ایک ڈائریکشن میں ہے قومی سلامتی پالیسی کے اہم نکات جاری کر دیے گئے پالیسی میں معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکیورٹی کو جوڑا گیا ہے دفاع داخلہ خارجہ اور معیشت جیسے شعبوں پر مستقبل کا تصور پیش کیا گیا ہے رپورٹ دیکھیے قومی سلامتی پالیسی کے اہم نکات جاری پالیسی میں دفاع داخلہ خارجہ اور معیشت جیسے شعبوں پر مستقبل کا تصور پیش کیا گیا ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع ناگزیر اولین فریضہ قرار کشمیر بدستور قومی سلامتی کا اہم مفاد رہے گا بھارت کے ساتھ امن کی خواہش اور مسئلہ کشمیر کا حل بھارت سے تعلقات کا مرکزی نقطہ رہے گا سی پیک سے متعلق منصوبوں میں دیگر ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان سرمایہ کاری انرجی انسداد دہشت گردی میں تعاون کا خواہاں قومی سلامتی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر انتہا پسندی معاشرے کو درپیش بڑا چیلنج ہے معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکیورٹی کو جوڑا گیا ہے
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा का खैर मकदम। कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी सियासी और अस्करी क़यादत के मुल्की दिफा के अज़्म की आकाश है। पॉलिसी मुल्क की सलामती और मजबूत मईशत की बुनियाद साबित होगी। पॉलिसी से मुल्क का दिफा और मुआशी मुस्तकबिल मज़ीद मजबूत और महफूज होगा। पाकिस्तान ज़रूरत के वक्त अफगानों को तनहा नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान में कीमती जानों को बचाया जाना सबसे ज़रूरी है। आलमी बरादरी को इंसानी बहरान रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत ताहम सियासी और अस्करी हुकाम शरीक हुए। शुरका ने अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इजलास से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस दौरान मुल्क की सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान में कीमती जानों को बचाया जाए। आलमी बरादरी को इंसानी बहरान रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान जरूरत के वक्त अफगानों को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ समेत दीगर अहम हुकाम ने शिरकत की। शुरका का अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इजलास के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंसानी बहरान से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को दोस्त ममालिक के साथ दो तरफा ताउन के इम्कानात तलाश करने की हिदायत करते हुए कहा है आलमी बरादरी और इमदादी इदारे अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करें ताकि कीमती जानों के नुकसान और मुआशी बहरान से बचा जा सके। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम किया। एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई। इस दौरान मुल्की सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर बातचीत की गई। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिंध की अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती बिल के खिलाफ आज प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे का ऐलान कर दिया। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कराची के शहरी बता देंगे कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। एमक्यूएम के मोहम्मद हुसैन का मानना है कि अदालती अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत 1 साल से टाल मटोल कर रही है। बल्दियाती बिल नामंजूर। अपोजिशन जमातें सूबाई हुकूमत की बिल के खिलाफ यकजा। 15 जनवरी को प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे का ऐलान। तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम और जीडीए एहतजाजी मुजाहिरे में हिस्सा लेंगी। सदर पीटीआई सिंध और वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं 14 साल से सिंध पर एक माफिया काबिज है। काले कानून को हर सूरत खत्म करके रहेंगे। पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए सब मिलके एहतजाज कर रहे हैं ताकि हम बता सके आसिफ जरदारी की माफिया को कि हम इस कानून को नहीं मानते। मामले पर जीडीए और मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं की बैठक। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद हुसैन और सरदार रहीम ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 15 जनवरी का जो हमारा एहतजाज का प्रोग्राम है भरपूर तरीके से शहर कराची में होगा। 2015 का एक इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, अहकामात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब डंडा उठाया है तो उसके बावजूद भी इसमें 1 साल सवा साल का जो है डिले। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक बा इख्तियार बल्दियाती निज़ाम अवाम की जरूरत है। कराची में जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज भी जारी। हुकूमती वफ्द और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात का एक और दौर। सिंध हुकूमत ने बेशतर तजावीज़ मान ली। दूसरा दौर आज फिर होगा। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। बल्दियाती कानून के तहत जितने इदारे सिंध हुकूमत ने कब्जे में लिए इन्हें वापस शहरी हुकूमत के हवाले किया जाए। अवामी नुमाइंदों को इनका हक दिलाए बगैर नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी वो जमात है कि जो कभी भी मुज़ाकरात से भागती नहीं है। मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे, धरना भी जारी रहेगा और कल भी भरपूर धरना होगा। मुख्तलिफ आबादियों से लोग आएंगे। मुज़ाकरात का ये पहला दौर हुआ है। वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर हम ये चाहते हैं केडीए, एमडीए, एलडीए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जितने इदारे शहर से मुताल्लिक हैं जिनको सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया है उन सबको शहरी हुकूमत के मातहत होना चाहिए।
पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से कराची धरना खत्म करने समेत शाहराह फैसल पर एहतजाज न करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कानून की मुखालफत करने वाली जमातें पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। बल्दियाती कानून के हवाले से तमाम पार्टियों से तजावीज़ तलब की गई थी। बहुत सी सिफारिशात को कानून में शामिल भी किया गया। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज को हमेशा खुशामदीद कहती है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पीटीआई का इक़्तिदार रेत के घर की तरह गिर रहा है। सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का दावा, कहते हैं इमरान खान की बेहिसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने अदालती दायराकार का फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान FIA को वापस कर दिया। मुतल्लिका अदालत में दायर करने की हिदायत। अदालत ने 7 रोज तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इनसे अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते। इनके हवारी परेशान है कि अवाम के पास कैसे जाएंगे। गुजरांवाला में सियालकोट बाईपास के करीब डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। डाकू दुकान से नकदी और कीमती मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए। मजीद बताएं कि वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ ने मौसूल कर ली। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। गुजरांवाला में जिना रोड पर निजी स्कूल में 7वीं क्लास की तालिबा से मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक तालिबा को नामालूम शख्स ने क्लासरूम में खंजर के जोर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। फोरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तालिबा को मेडिकल के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। थाना सिविल लाइन में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान से खबर दें, जहां पर थाना अल्पा के इलाके में खातून 2 बेटों समेत अगवा कर ली गई। 3 मुलजमान ने घर से असला के जोर पर मां और 2 नन्हे फूलों को अगवा किया। पुलिस ने दादा की मुद्दत में 3 अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमाओ मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 100 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर, सवाबी, बाजोड़, सवात, मालाकंड, बुनीर, मानसहरा, बालाकोट, तुरगर, आज़ाद कश्मीर के शहरों वादी नीलम, ददनियाल, तहजियाँ और इसी तरह से दीगर इलाकों में महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस लोगों में खौफ हिरास फैल गया और वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और अब आपको बताएं, सानह मरी के दौरान इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। मरी में बर्फ हटाने वाली गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रही और इस्तेमाल नहीं किया गया। सानह मरी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी की तहकीकात में संगीन इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए का कहना है तूफ़ानी बर्फबारी की पेशगोई के बावजूद पेशगी इकदामात न किए गए। तूफ़ान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 एक ही जगह सनी बैंक पॉइंट पर मौजूद रही। गाड़ियों को चलाने के लिए मुतय्यन ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। कोयटा में आटे और दूध की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। कम आमदनी वाले अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। शहरियों ने महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया है। मजीद बताएंगे असमत अमान समलानी। कोयटा में दूध फी किलो 5 रुपए और आटे की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। दिहाड़ीदार और रोजाना उजरत पर काम करने वालों के लिए एक वक्त का खाना और बच्चों का दूध भी पहुंच में नहीं रहा। मोहम्मद निजाम बचपन से मोची का काम कर रहे हैं। आलिया महंगाई ने मोहम्मद निजाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। इनका मानना है कि जब से वो काम कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के दौर में इसकी मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हुआ है। हर चीज महंगा हुआ है। गरीब के वस से बाहर है, जो अमीर के थे अपने आप को उसके वस से भी बाहर है। मोहम्मद निजाम का कहना है पालिश और दीगर सामान महंगा हो गया है। अभी हम 400-500 कमाते हम हैरान है। चीनी खरीदे या आटा खरीदे या गर्ज का खर्च करे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मोहम्मद निजाम की तरह दीगर कम आमदनी वाले अफराद भी महंगाई से परेशान है। लोग खुश थे कि भाई खाना आ गया, खाना आ गया। खान का 3 साल पूरा हो गए, कुछ नहीं हुआ है। दिन पर दिन महंगाई, दिन पर दिन महंगाई, बेरोजगारी, तक कि भाई बस क्या बोले। बहुत महंगाई है, ज़्यादा महंगाई है। अभी एक मजदूर का दाढ़ी
वो बेचारा 400 या 500 रुपए दिन को कमाएगा। अभी वो बेजार है कि भाई हम चीनी किधर से पूरा करेगा, घी किधर से पूरा करेगा, आटा किधर से पूरा करेगा। बहुत सख्त महंगाई। कोयटा में दूध की नई कीमत 125 रुपए फी किलो और आटा फी किलो 71 रुपए का हो गया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक ने मुल्तान में सनतजार रोड पर कायम दीवार एहसास का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम किए। इस मौका पर डायरेक्टर एडमिन पंजाब फैज़ नईम वड़ाइच और मुजम्मिल यार डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान भी उनके हमरा मौजूद थे। मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि महकमा सोशल वेलफेयर अफसरान के हमरा मुल्तान में दीवार एहसास, दारुल अमान, वेमन सेंटर और बुजुर्ग शहरियों के लिए कायम इदारे आफियत का दौरा किया है। पंजाब हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 40 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। एहसास राशन प्रोग्राम से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद होंगे। राजनपुर में दीवार एहसास का डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की जानिब से जो है दीवार एहसास के इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके तमाम तर मामला जो है सोशल वेलफेयर उठाएगी। दूसरी जानिब जो है इस दीवार पर आम तबके के इस्तेमाल की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होंगी। और दूसरी जानिब इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तमीना इरशाद मौजूद। हम उनसे जानने की कोशिश करें, मैडम इस दीवार में यानी कि क्या कुछ मौजूद होगा, आम मुगैर हजरात को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इनिशिएटिव लिया गया है दीवार एहसास के नाम से, जिसका डिप्टी डायरेक्टर अहमद नाइक साहब ने इफ्तिताह किया, इसमें यह कि फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से या मुखैर हज़रात जितने भी हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें, सर्दियों के कपड़े हैं, जूते हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं या बिस्तर वगैरह हैं, या एक्स्ट्रा जो घर में सामान जो आप यहाँ पे देना चाहें दीवार के साथ रख जाएं या इस पे लटका जाएं, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से ले जाएं। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है और हम इसको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है कामयाब बनाए, जबकि इनकी जानब से जो मुखैर आज़ाद हैं उनसे ये अपील की गई कि वो यहाँ पर जो है ज़रूरत की चीज़ें रख कर जाए, जबकि गरीब तबके को भी ताकि ये मैसेज पहुँचे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है यहाँ से उठा कर ले जाए। जबकि इस दीवार पर जो है इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गर्म कपड़े, जूते और दीगर जो ज़रूरत की अशिया है वो यहाँ पर जो है मौजूद होंगी। जी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर तमाम 11वीं 12 क्वाड मशकों के तीसरे रोज़ खुले समंदर में मशक का अमली मुजाहरा किया गया। मैरीटाइम के 8 और पाकिस्तान नेवी के 2 जहाज़ों ने मशक में हिस्सा लिया। मजीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से 11वीं बाराकोडा मशक का इनेकाद। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के 8 और नेवी के 2 जहाज़ों समेत रैपिड रिस्पांस स्पीड बोट्स और केपीटी के ऑयल स्पेस जहाज ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में नेवी के जहाज ATR और सी कैंग हेलीकॉप्टर ने महारत का अमली मुजाहरा पेश किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी ने कहा, PMSA फ्रंट लाइन जहाद कर रही है। MSA को हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि MSA के होने की वजह से नेवी के कुछ चीज़ें जो है काम कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो छोटे छोटे इश्यूज हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि इन्हें शिरकत का मौका दिया। Today we are going to see how they are responding oil spill out at sea. So this will be a great opportunity for us. We are on board. We are very happy to be here. मशकों की इख्तितामी तकरीब में 15 ममालिक के 26 मंदोबीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने एयर एवेन्यू ईडन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने बिजली, पानी, सीवरेज और प्लॉट्स की मिल्कियत के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। मुजाहरीन का कहना था कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां इम्तियाज़। लाहौर में निजी सोसाइटी के मुतासरीन का एयर एवेन्यू ईडन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बिजली, पानी, सीवरेज और प्लाट्स की मलकियत के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। अभी तक इन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया। सीवरेज अधूरा है, बिजली अधूरी है, बाउंड्री वाल अधूरी है, सिक्योरिटी सिस्टम कोई नहीं है। इसके अलावा एक जो इनका ब्लॉक है, D ब्लॉक, वो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। ये बुनियादी मसाइल हैं जो एक रहायशी को रहने के लिए चाहिए, जो कि हमने इनको कई बार एहतजाज भी किया, जगह जगह हमने जाके इनको रिमाइंडर भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे मसाइल जूं के तूं पड़े। निजी सोसाइटी के मुतासरीन ने इंतजामिया से हकूक पूरे करने का मुतालबा करते हुए कहा, मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरे कार वसी किया जाएगा। सारे डेवलपमेंट चार्जेस भी दे चुके हैं, मस्जिदों के पैसे ये लेकर खा गए हैं, ना मस्जिदें बनाई हैं, ना पार्क बनाए हैं, ना रोड बनाई है,
कोई डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं किया। अगर मस्जिद का और ये जो छोटे छोटे मामले था, बिजली का मामला हल ना हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा और लॉ एंड ऑर्डर के मसले के बाद तमाम जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी, रेजिडेंट इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन में अजहर हल, हारून रशीद, अफजल शाहिद, जुल्कनैन मुश्ताक और शहजाद अहमद समेत रिहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ मियां इम्तियाज अली, न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोदा में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन कंपनी बाग के जिना हाल में मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान रैलियों की शक्ल में वर्कर्स कन्वेंशन में शामिल हुए। वर्कर्स कन्वेंशन से मुकामी रहनुमाओं ने शुरका से खिताब किया। इस मौका पर ज़िलाई रहनुमा अंसर इकबाल, राजा अब्दुल वहाब और इफ्तिखार अहमद ने कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन का मकसद कारकुनान को मुतहर्रिक करना है, ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह करप्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमें उनके हाथ मजबूत किए जा सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शारी रहमान ने कहा है, दुनिया को पैसा नहीं औरतें चलाती हैं। मुल्क मईशत में औरतें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही हैं। फैक्ट्रियों से लेकर दिफाई शोबे तक और खेतों से लेकर कानून साजी तक ख़वातीन मुल्क की तरक्की में बराबर का हिस्सा डालती हैं। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में सेनेटर शीरी रहमान की किताब की तकरीब रोनुमाई। शीरी रहमान ने अपने खिताब में कहा, ये किताब वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को डेडिकेट करती हैं, जिसमें पाकिस्तान की खवातीन की तहरीक और जिद्दोजहद की तारीख बयान की गई है। आज भी पाकिस्तान में खवातीन की कामयाबियों और जिद्दोजहद की ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जिस पर न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया फख्र करती है। That we have listened and we have all created perhaps a charter or a society. उन्होंने कहा कि किताब खवातीन के हुकूक के हवाले से उठते हुए वसी तरीन सवालात के जवाबात और हिकमत अमली, तहकीक, वसाइल, कानून साजी, सियासी हुकूक और कई दीगर पहलुओं पर तफसीली जायजा पेश करेगी। कुतुब बीनी के फ़रोग़ का मिशन सिंध रीडर्स बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद के शहरियों और लाइब्रेरीज़ को 3000 कुतुब फराहम की गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट #सिंध रीडर्स के नाम से मकबूल हो गई। देखिए कराची से मोना सदीकी की रिपोर्ट। संजय राजा रहते तो कराची में हैं, लेकिन बुनियादी ताल्लुक उनका लाड़काना से है। संजय ने कोविड लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ किताबों से दोस्ती कर ली, बल्कि समाजी राब्ते की साइट पर अपना एक सोशल सर्कल बना लिया। जो मेरे पास किताबें पड़ी थी, मैंने उसको फ़ोटोज़ लगाए। फ़ोटोज़ लगाने के बाद मैंने ट्विटर पे लोगों से कहा कि आपको जो अपनी पसंद की किताब है वो मुझसे ले ले। लोगों ने एड्रेस देना शुरू किया, मैंने किताबें भेजना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता गया। संजय अब तक मुख्तलिफ शहरों में 3000 से ज़ायद किताबें देकर लोगों में किताब बीनी का शौक पैदा कर चुके हैं। बस ख्याल यही था कि जो रीडिंग कल्चर है ना, किसी भी सोसाइटी की जो जहनी डेवलपमेंट है, प्रोग्रेसिवनेस है और इंतशार से लिखना है, लोग जानेंगे तो चीज़ों को मानेंगे। कहते हैं हर घर में किताब पहुंचाना उनका मिशन है। सिर्फ यही नहीं, उर्दू बाजार से किताबें खरीद कर पाकिस्तान पोस्ट के जरिए बिला मुआवजा किताबें मंगवाने वालों को भेजी जाती हैं। इल्म के कारवां को बढ़ाने का अज़्म रखने वाले संजय राजा की मुहिम का मकसद है लोगों में मुताले का रुझान बढ़ाना और हर घर तक किताब पहुंचाना। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। सुपीरियर ग्रुप अपने वादों की तकमील के लिए कोशां। अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को बेहतरीन मुलाजमतें और तजुर्बा हासिल करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। इस सिलसिले में सुपीरियर ग्रुप और ब्राइटो पेंट्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। रिपोर्ट देखिए। माजी की तरह सुपीरियर यूनिवर्सिटी तलबा और तालबात को बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए पुरअज़म ब्राइटो पेंट्स के साथ शराकत दारी से जिम्मेदार और काबिल अफराद को बतौर मुस्तक़बिल मुलाजिमीन की सूरत में मुहैया करने के मौके मिलेंगे। सुपीरियर ग्रुप की तरफ से डायरेक्टर सुहेब महमूद और ब्राइटो पेंट्स की जानिब से डायरेक्टर ज़ैन अहमद ने मुआहिदे पर दस्तखत के साथ इस ताउन को सराहा। कहा, ये इदारा अपने तालिब इल्मों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात के साथ साथ पेशा वराना महारत के लिए
पाकिस्तान भर के बेहतरीन हुकूमती और निजी इदारों में उनकी तरबियत का खास एहतमाम करता है। सुपीरियर ग्रुप के डायरेक्टर सुहेब महमूद ने ब्राइटो पेंट्स के साथ इस मुआहिदे को अपने इदारे के तालिब इल्मों के लिए एक इंतहाई कारआमद मोड़ करार दिया। उन्होंने मजीद कहा, आइंदा बहुत से तुलबा दौरान तालीम अपनी पेशा वराना तरबियत हासिल करने के लिए इस अहम इदारे में बाआसानी मौके हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन उस्मान सद्दीक के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़ लाहौर।